My dear, whatever you are, but you are very valuable for me The best friend. because you are my Alien. laboratory Alien. where I do different things with you. So please now be sincere. Yesterday I told you about Max Muller, and I think you would have written some facts about him. So, and in today's session, we have a small session of asking some questions to you, and that would be a rapid session. You will be given no time. You can watch your notes that you have written in your notebooks, and please get ready for answering my questions rapidly, without without taking time. When was Frederick Max Muller born? Kajal. Sir, 1823. Very nice. And when he died, Rohit? So 1900. Good, very good. Where did he take birth? Gaurav? Sir, Germany. Very good. In Germany. Of which country's citizenship did he adopt? Anuj? Sir, British. What did he become there? In Britain. What did he become after taking the citizenship of British? So what did he become there? Or you can say that what did he do there? What was his profession? This question goes to Anjali. Hurry up. Anjali, not here. Lakshmi. Question won't be repeated. Yes, sir. He became a professor of modern. No. What did he become? He became a professor. That's it. It became a professor. Yes. Of what subject was he professor? Khushi. Sir, modern European Sanskrit. हाँ संस्कृत. रक्षित सही बोल रही थी पहले, फिर संस्कृत में पहुंच गई. रक्षित. Yes, sir. Sir, a professor of modern European languages. Very good. Where was he professor? Aditya. माइक चालू करके बोलो. Where was he professor? I think Aditya is not able to listen to me, or I think there is some problem in his audio system. So now Harshit. Sir, Oxford University. Okay. Where is this Oxford University, Kazal? Sir, in Britain. In Britain. What did he translate? Harsh. Sir, Sanskrit text Very good. and literature. What did he edit? Rohit. Sir, his comments. Gaurav, wrong answer. Gaurav, the same question. Sir, Sanskrit texts Very and good. On what did he comment?
अनुज, Sir, what? on what did he comment? You will have Sanskrit to text. focus on Sanskrit text. accent, pronunciation, on everything. ऐसे थोड़ी on what did he comment? ऐसे थोड़ी बोलूंगा. On what did he comment? Now No, you have sir. to listen Sanskrit to it. text. Sorry. Sanskrit text. Shabash, very good. What did he call? What was he called? Sorry. What was he called by Neeraj C. Chaudhary? Anju. Scholar extraordinary. Arey wah, shabash, very good. Who called him extraordinary scholar or scholar extraordinary? Khushi. Neeraj Singh Chaudhary. Shabash, very good. Very good. Very good. So, what did he write about India in the text that I am going to tell you, as I told you? Yes. What did he tell about India? Lakshmi. He tell about India Told great नहीं आएगा. culture. Told नहीं आएगा. Yes, Only sir. did. Yes, sir. He told about India great. He told about India culture India and culture. India culture. yes, sir. India culture. India Yes, sir. इंडिया कल्चर या इंडियन कल्चर? Indian culture. क्या है, तेरे को भी शादी में जाना है क्या जिम ने? No, sir. जिम क्या ही है? No, sir. बोल. That's it, sir. दैट्स इट कैसे हो जाएगा? अभी हुआ ही नहीं है कुछ. दैट्स इट कहां से हो जाएगा? रक्षित. Yes, sir. Sir, he tells about the greatness of India that maintains many solutions of the problems of mankind. Very good. Who has the solutions of many problems confronting mankind? Who has the solution of so many problems of the world? Aditya. Aditya. I think there is some problem in his system. Harshit. Sir, Harshit. Yes, sir. Frederick Max Mueller. No. Kajal. Sir, greatness of India. ग्रेटनेस कैसे हो? इंडिया हो गया ना खाली बस. ग्रेटनेस का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? India. बेटा आ गया समझ में? Okay, sir. So now you can put down the heading of the topic, the text, that is what India can teach us, and this is what I am telling you has been written by Max Muller. कल मैंने राइटर के बारे में आपको बताया था कि मैक्स मूलर कौन राइटर है, और उस राइटर ने कुछ लिखा है इंडिया के बारे में. उसका एक टॉपिक अपन ले लीजिए, व्हाट इंडिया कैन टीच अस. भी पढ़ा होगा शायद आपने. ठीक है, सेम सिस्टम चलेगा. थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, दोबारा पढ़ दूंगा, एंड देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए आप. अपना अपना परफॉर्मेंस आपके सामने है. आज कुछ क्वेश्चंस के किसी ने जवाब ही नहीं दे पाए, कोई गलत जवाब दिया. अपना अपना खुद एनालिसिस कर लो आप यार. लक्ष्मी ने एक का सही जवाब दिया, एक का गलत दिया. खुशी का एक ही बार नंबर आया, शायद नहीं 2 बार नंबर आ गया था. एक बार सही दिया, एक बार गलत दिया. 50% रह गया बेटा. 2 में से 1 गलत हो गया, 50% रह गया बेटा. सीधा कैलकुलेशन है यार. अंजलि का 100% है. अनुज ने भी शायद एक का जवाब नहीं दिया था, एक ही पूछा गया था इससे. सर 2 पूछे थे, दोनों का दिया था. चल 100%. गौरव ने भी दोनों का जवाब दे दिया था शायद. क्यों?
100%। रोहित और हर्ष ने क्या किया था? कितने पूछे थे, कितने जवाब दिए थे? आप खुद देख लो, सर मैंने देख लो, अपना अपना खुद का नोट कर लो, आप अपना मार्किंग कर सकते हो आप। 1/2 और 2/2। 1/2 50%, 2/2 100%, 0/2 0%। आपके सामने है सारा रिजल्ट, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद अपने एनालिसिस कर लो आप। So now listen to me so carefully, and you can write down the main important things that you think that are important. So according to Max Muller, who was a great admirer of India and who told that India is a great country and India has the solution of many problems, many great problems that our mankind is facing even in present. So what he's saying, now focus on my listening. What Max Muller says about India, that if I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow, in some parts is very paradise, in some parts a very paradise on earth, I should point to India. If someone asks me that, please tell me the name of a country that is the paradise on earth, that the country that has rich wealth, power, and beauty the nature can bestow, so I would say that that country is India, according to Max Muller. Now you please try to understand the greatness of our own country, and this is all by an by not an Indian, by a foreigner. If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problem of life, and has found solutions to some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा सुनाऊंगा आपको, है ना, थोड़ा सा, लेकिन एक रूपरेखा बननी चाहिए आपके दिमाग में, क्या बात की जा रही है, कैसे बात की जा रही है, किस तरीके की बात की जा रही है, कुछ तो आपको समझ में आएगा ही अगर आप फोकस करोगे। एंड इफ आई वर टू आस्क माई सेल्फ, खुद से पूछूं तो, फ्रॉम व्हाट लिटरेचर वी हियर इन यूरोप, वी who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more comprehensive, more universal, in fact, more truly human, a life not for this life only, not for this life only, but a transfigured and eternal life. Again, I should point to India. क्लियर हो गया? कुछ बातें तो समझ में आई होंगी आपको। अगर कोई मुझसे ऐसे पूछे कि इस धरती के ऊपर ऐसा कौन सा देश है, मैं कहूंगा इंडिया। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ऐसा कौन सा देश है, मैं कहूंगा इंडिया। अगर मुझसे कहे कि ऐसा कौन सा देश है, मैं कहूंगा इंडिया। इतना तो समझ में आया ही होगा, है ना? कोई बात नहीं, बहुत अलग चीजें कर रहे हैं अपन लोग, अपन वी आर नॉट डूइंग एनी ऑर्डिनरी थिंग। अच्छे समझ लेना आप, समझ गए मेरी बात आप? हम कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अब, बिकॉज इफ यू आर विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका लेवल भी होना चाहिए ना, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? तो उस लेवल पर मैं आपको ला रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी मैं जिस
ट्रैक पे चल रहा हूं ना आप लोगों के साथ में, that is a different track, and this is not a new one for you, but also it is totally new for me. तो मैंने चलना शुरू कर दिया बस इस पे। ईमानदारी की बात है, कोई मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, क्या करना है कैसे करना है आई डोंट नो। पर हमको किसी की एक बात याद आती है, किसी ने कहा है, बिल्कुल वही चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ कि आप अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं, इफ यू स्टार्ट अ थिंग एनी टास्क विद प्योर इंटेंशन, विद इंटरेस्ट, इंटेंशन का मतलब एक सही इंटेंशन के साथ अगर आप शुरू करते हो, इंटेंशन, और इफ there is some good in your thought, in your idea that why you are doing it, so why I am doing it, to improve yourself, to improve myself, to give you new things, to improve your level of thinking, to develop your skill. So these all things are in my mind, okay, and I have these are my targets that I have to do it, okay now. But I know that what is the way of it. So I think that only practice is the way of it. If I want to make you proficient in listening, so naturally I will have to give you the practice of listening, make it sure. And if I want you to comprehend what is being said, so I know that you cannot do this only in 1 or 2 or 3 days, and no one can do. Make it sure that no one can do. But if we have pure intention, then we can do it one day. So that is why I don't know the way totally. मैं दिल्ली की तरफ चल गया हूँ, बस घर से निकल गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को पता नहीं है दिल्ली, मुझे पता है कि ये रास्ता है दिल्ली का, तो मेरे को जाना है, दिल्ली पहुंचना है मेरे को। अब मेरे को किसी ने सिखाया है कि बेटा आपने अगर सोच ही लिया है तो आप चलते रहो फिर यार। अब कई बार आपको लगेगा आगे जाकर के कि यार द वे इज ब्लॉक, आगे रास्ता नहीं दिख रहा आपने को, होता है ना कई बार। तो मुझे किसी ने ये सिखाया, मेरे गुरुओं ने ये सिखाया है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है ना चलते जाओ, पहले ही मत रुको आप। पहले का मतलब होता है कि आप देखो अरे यार आगे तो रास्ता बंद है, तो यहीं से रुक जाते हैं अपन, वापस घूम जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपको अगर भरोसा है ना कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, तो आपको केवल ये मत देखो कि वो दिख रहा है बंद हो गया तो रुक जाओ यहीं पे वापस घूम जाओ ना। वो जो दीवार आगे दिखाई दे रही है ना, मेरे को उस दीवार तक जाना है। और फिर मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि बेटा अगर तुम्हारा इंटेंशन बहुत अच्छा है ना, तो आपको पता है जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां चलो, वहां तक पहुंचो, और फिर वहां से आगे का जो रास्ता होगा ना वो आपको वहां से मिल जाएगा। मैं अभी उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ। मैं कोई सर्वज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं चीजों को करता हूँ और सीखता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि यू आर माई लेबोरेटरी, और मैंने आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। कई दिनों से कर रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा सा हल्के में लेके चल रहा था। मुझे लगा कि नाउ यू आर डूइंग वेल, you are taking interest, you are doing well, your performance is good, you are comprehending what I am saying, you are really learning new words, you have focus, you are developing your focus. So now I am trying to raise your level. So I don't know what will happen, but I am sure that it will definitely improve you in a new way. So that is why don't worry if something is not clear to you. No problem. So okay, now I am reading it again, second time. If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed, आप मीनिंग लिख सकते हो endowed, और धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं अब आपको, endowed, आप कोशिश करो लिखने की, स्पेलिंग गारंटी दे रहा हूं मैं। आप मेरे साउंड पे फोकस कर लो, एक लेटर से ज्यादा गलत नहीं होगा इसमें, एक लेटर गलत हो सकता है बस। endowed, अब स्पेलिंग चेक कर लो आप, ENDOWED,
ज्यादा आपने डब्ल्यू नहीं लिखा होगा, ई नहीं लिखा होगा, बस एन डॉट ये तो लिख ही दिया होगा यार आपने यार, लिखा ई एन डीओडी तो लिखा ही होगा आपने अगर साउंड पे फोकस है तो। कोई बात नहीं, 2 लेटर रह गए तो थोड़ा फोकस करके लिखोगे तो अगली बार उसको भी लिख लोगे आप। विद ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी that nature can bestow, लिखो स्पेलिंग, bestow 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 bestow, bestow आपने ज्यादा डब्ल्यू नहीं लिखा होगा, ई की जगह ए लिख दिया होगा, यही तो किया होगा ना, है bestow। भाई एक बात है, अब यहाँ पर मेरी सीधी सीधी कैलकुलेशन होती है भैया, 6 लेटर हैं इसमें बेटा, 6 लेटर में से अगर आपने 2 लेटर गलत लिख दिए या नहीं लिखे, 4 तो सही लिखे हैं, तो भैया 6 में से 4 कितना परसेंट हो गया, 66% हो गया। तो 66% अगर आप सही कर रहे हो तो यू आर गोइंग वेल। सर हाँ सर आपने इतनी जल्दी परसेंट कैसे कैलकुलेट कर ली? पता नहीं यार, गलत था क्या? नहीं सर, सर मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आप कोई भी परसेंट फटाफट बता देते हो। भगवान ने बुद्धि दी है मेरे को, मैं उसको यूज करता हूँ। और एक बार बताऊं, मैं जितनी भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है ना, उससे कई गुना बुद्धि, कई गुना ज्यादा बुद्धि तुम लोगों को दी है। पता है फर्क क्या है? मैं कोई भी काम करता हूं ना, बहुत ज्यादा फोकस्ड होता हूं मैं उसके ऊपर, कोई भी काम करूंगा। मैंने आपसे कई बार कहना है कि मैं चादर बिछाता हूँ ना, चादर बिछाने, चादर की क्या औकात, घर में बिस्तर पे चादर बिछा रहे हैं हम, क्या औकात, अब उसमें तो थोड़ी बहुत टेढ़ी भी रह जाए तो चलेगी ना, मेरे नहीं चलेगी, मेरे नहीं चलेगी। पता नहीं मेरे अंदर ये अच्छाई है बुराई है। अगर मैं कोई कपड़ा भी सुखा रहा हूं ना, तो मैं ऐसी टेढ़ा मेढ़ा नहीं सुखा दूंगा उसको, मैं उसको लेवल में लेके सुखाऊंगा। समझ में आ रही बात आपको? मैं अगर कहीं गाड़ी पार्क कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसी पार्क नहीं कर दूंगा, मैं जितना मैं उसको दबा सकूंगा ना साइड में, मैं उतना दबा के गाड़ी को पार्क करूंगा। पता नहीं अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें, मैं हर चीज में इतना फोकस्ड होता हूं कि बस, तो शायद हो सकता है ये एक रीजन, और मैं ये आपको बार बार कहता हूँ। समझ में आ गई बात आपको? फोकस बहुत बड़ी पावर है, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये है चीजें जो आपको अपने अंदर लानी चाहिए। Once upon a time there was a कागला sitting upon a डागला, ये what is this, रट्टे मारो, सुनना मम्मी, सुनना पापा, सुनना भैया, सुनना दीदी, लिख लिख के याद कर रहे हो, what is this, that is not। ये चीजें आप डेवलप करो अपने अंदर, फोकस डेवलप करो, इंटरेस्ट डेवलप करो अपने अंदर, कंसिस्टेंसी डेवलप करो, अपने आप को मेंटेन करके रखो उस लेवल पर, जहां उस लेवल पर आप पहुंच चुके हो। तब आता है जिंदगी का मजा। पैसे 2 कम कमा लेना, जिंदगी तो मस्ती के साथ जियोगे यार, लगेगा कि हाँ यार लाइफ में कुछ किया है। पैसा क्या है, कौन देखता है पैसा, तुमको दिखता है क्या मेरा पैसा? नहीं दिखता। नथिंग इज मनी इज नथिंग। बहुत मैंने पैसे वाले देखे, मैं भी देखता हूँ अपने आप को, मैं पैसे वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिच मैन, बट आई एम नॉट अ पुअर मैन। क्या है हम पता नहीं। ना तो हम अमीर है यार, ना गरीब है यार, रोटी भी मिल रही है, खा भी रहे हैं, तन भी ढक रहे हैं यार, यार गरीब तो नहीं है यार। अब यार पर यार खर्च करने के लिए भी नहीं है, पॉकेट में भी बहुत ज्यादा नहीं है यार, तो यार अमीर भी नहीं है यार, यार समझ में नहीं आता यार हम हैं क्या यार, गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, तो हम हैं क्या फिर यार? सर इसलिए तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। अब
तुम वापस आ गए हो अपनी पागलपंती पे, वापस आ जाओ. You know, I should point to India. If in some parts a very paradise on earth, if someone asks me that in some parts a very paradise on earth, what is that part? So I should point to India. If there is paradise on this earth, that is in India. And you know, if it is paradise on this earth, that is Kashmir, Kashmir and Kashmir. चलना कभी मेरे साथ. If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered 100% सही लिख दोगे, गारंटी दे रहा हूं. Pondered, pondered, अरे आएगी नहीं क्या यार? हम क्या कोई यहाँ चामू से आए हैं क्या? कोई हम क्या उसमें लट मारते हैं क्या? जिंदगी पूरी हमने आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी इसके पीछे भागते भागते. सर वैसे आप चोमू को रोस्ट क्यों करते हो? पता नहीं यार, ऐसे लोग कहते हैं तो मैं भी बोल लेता हूँ यार. अब पता नहीं, सर बगर को आदमी की क्वांटिटी दे दी. पता नहीं यार, आप सोचना पड़ेगा यार क्यों कहते हैं. वैसे नहीं कि चोमू का मतलब पागल, इसलिए बोल देता हूँ. सब बोल देते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ यार, मेरे को ज्यादा पता नहीं है. वैसे पता होना चाहिए तभी बोलना चाहिए. So if someone asked me that, if I were asked under what sky the human mind has fully developed, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, फ्रेज है. Some of its choicest gifts has most deeply, next clause है, has most deeply pondered, समझ जाओगे मीनिंग भी अगर फोकस कर लिया तो. Has most deeply pondered on the greatest problems of life and, समझ में आ गया होगा पॉन्डर का मतलब, यार क्या आप बात कर रहे हो. And has found solutions to some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant. I should point to India. अमेरिका का नासा मौसम के बारे में जो जानकारी देता है ना, समझ लेना और समझ लेना. अमेरिका का नासा जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताता है ना, कितना पैसा खर्च करने के बाद बताता है, वो जानकारी हमारे हिंदुस्तान के 50 रुपए के पंचांग के अंदर मिल जाएगी आपको. 50 रुपए का पंचांग वो जानकारी दे देगा. And if I were to ask myself from what literature we here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more comprehensive, more universal, in fact, more truly human, a life not for this life only, but a transfigured, कुछ शब्द मैंने भूल गया, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना. ट्रांसफिगर्ड लिख लोगे आप, एक स्पेलिंग की गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, अगर फोकस है तो बता दूंगा कौन सी स्पेलिंग गलत करोगे आप. ट्रांसफिगर्ड अगर आप फोकस कर लिया तो वो भी गलत नहीं होगा. ट्रांसफिगर्ड, TRANS कोई गलती नहीं होगी आपकी. FI कोई गलती नहीं होगी. G कोई गलती नहीं होगी. U आएगा, हो सकता है U की जगह आपने A लिख दिया हो. E लिख दिया हो,
हो सकता है यू ही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिगर की स्पेलिंग याद है तो हो जाएगी यहाँ पर ट्रांसफिगर्ड, FIGURED। आ रहा है मजा? सर एक बार वापस बोलो। TRANSFIGURED। एंड एटर्नल, एटर्नल, एटर्नल लिख दोगे, स्पेलिंग गारंटी दे रहा हूं, एटर्नल, 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 ETERNAL। चेक कर लो। सर रिपीट करने पर गलत हो भी जाए तो भी टेंशन मत करो। एटर्नल, एटर्नल, ETER, एटर्नल, NAL, नल, eternal life। अगेन आई शुड पॉइंट टू इंडिया। एक वर्ड और लिखो, मैं बोल रहा हूं आपको, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव लिख लो पहले, बाद में बोलूंगा स्पेलिंग। कॉम्प्रीहेंसिव, अब चेक कर लो, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रीहेंसिव। कोई नहीं, रिपीट आपने करना कहीं पर ई की जगह आई कर दिया होगा। हाँ बच्चा बोल, सर, रिपीट कर दो एक बार। पहले सुनो एक बार प्रोनाउंसिएशन। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, अब चेक करो, COMPREHEN, कॉम्प्रीहेंसिव बोला था ना मैंने, कॉम्प्रीहेंसिव बोला था ना, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रीहेंसिव। एक वर्ड और लिखो। सर हम्म, सर ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या होएगा? वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो, साउंड पे फोकस करो। मैंने कहा ना मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं क्या करूंगा, अब अपने आप ही हो रही है चीजें, आप कर लो बस। मैंने नहीं सोचा था मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, बस हो रहा है अपने आप, बस आप करो बस। दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। एक और वर्ड लिखो आप, यूनिवर्सल, 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 चेक कर लो, UNIVERSAL। एक और लिखो, ध्यान से सुनना, कभी नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा, पर लिख दोगे आप अगर साउंड पे फोकस कर लिया तो। एक ही स्पेलिंग गलत करोगे आप ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं करोगे आप अगर और अच्छे से फोकस कर लिया तो। बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, सेमिटिक, दोबारा बोल रहा हूं, सेमिटिक, तीसरी बार बोल रहा हूं, सेमिटिक, चौथी बार बोल रहा हूं, सेमिटिक, पांचवी बार सेमिटिक, छठी बार सेमिटिक, सातवीं बार नहीं बोलूंगा, स्पेलिंग बोलूंगा, SEMITIC। कभी नहीं सुना होगा आपने। हम रट्टा मारे पड़ रहे हैं, CAT कैट, CAT कैट, CAT कैट, मम्मी सुनना, CAT कैट, मम्मी सुनना, DOG डॉग, पापा सुनना, 4 आप सुन लो पापा, 5 आप सुन लो मम्मी, CAT कैट, CAT कैट, CAT कैट, याद हो गया, शाबाश। और वहां पता चल रहा है एग्जाम में जाके बहन जी लिखी है CAT कैट। साउंड पे फोकस कर लिया, फोकस तो होता ही है, करना ही पड़ेगा, तो आपकी स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक और लिखवा दूं, करेक्टिव लिखवा दिया क्या मैंने आपको? करेक्टिव, 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 देखो लिख दोगे आप, गारंटी दे रहा हूं, एक स्पेलिंग की गड़बड़ करोगे अगर आप करोगे तो। करेक्टिव, 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 चेक करो, CORRECTIVE। कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो हो जान, आप थोड़ी आ जाएगी। थॉमस अल्वा एडिसन तो 1000 बार फेल हुआ था,
तुम तो इतने फेल भी नहीं हो रहे हो। क्लियर हो गया आपको? सर हाँ करेक्टर की स्पेलिंग यही है ना, CURRECTIV, CON है सर। हाँ हाँ सर RRECTIVE। हाँ बेटा सर वो जिसने डेंगू बनाया था उसका क्या नाम था? चुप रहे, चुप हो जा, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जा, सर जिसने कोरोना बनाया था क्या नाम, उसका क्या नाम था? बिल्कुल चुप हो जा। हो गए सारे? लिख लिया आपने वर्ड्स? कितने वर्ड्स लिखे आपने? कुछ तो मैंने आपको लिखवाई दिए। एक और लिखो, एक वन मोर, नर्चर्ड, 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 नर्चर्ड। लिखो, घबराते क्यों? च पे आके रुक गए, लिख लिया। च पे आके रुक गए तुम। नर चर्ड, नर्चर्ड, 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 NURTURED, नर्चर्ड, एक बार दोबारा बोलना। NURTURED, नर्चर्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच।